Good morning, students. Today, myself Shivam Chaturvedi, and I'm going to start the new topic of chapter 13, motion and time, of class 7th. That is uniform motion and non-uniform motion. So, what is uniform motion? Uniform motion क्या होता है? What do you mean by uniform motion? Uniform motion से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको समझना है, वो देखिए ध्यान से. ठीक है. सबसे पहली बात तो ये है कि मोशन क्या. व्हाट इज मोशन? इफ़ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ़ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है ना. इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. मोशन कंडीशन में कहलाएगी. ठीक है ना. तो वो मोशन कहलाएगा. ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी लगातार उसी रेट पर चलती रहे जिस रेट पर उसकी बॉडी, उसकी स्पीड स्टार्टिंग में है. इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस, इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस एंड इट विल रिमेन constant for the whole journey, then the motion is said to be the uniform motion. Then the motion is said to be the uniform motion. Uniform motion का मतलब होता है, if a body covers equal distance, if a body covers equal distance in equal interval of time, if a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in, then the body is said to be in uniform motion. Then the body is said to be in uniform motion. ठीक है ना. अगर बॉडी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be in uniform motion. Then the body is said to be in uniform motion. Now let us take an example. Now I am going to tell you that in case of uniform motion, the speed of the body remains constant or same. So now let us take an example. To prove this thing that the speed will remain same or constant. Suppose that the body is traveling from this point to this point. That is A, B, C, D and E. And each point is at a distance of 200 meter apart from each other. It means each distance is 200 meter apart from each other. Okay. This is also 200 meter. This is also 200 meter. Each distance is 200 meter apart from each other. Now, the time taken, the time taken to cover this 200 meter is approximately, it takes 10 seconds. It takes 10 seconds to cover 200 meter. It again takes 10 seconds to cover 200 meter. It again takes 10 seconds to cover 200 meter, and it again takes 10 seconds to cover 200 meter. So in this case, this condition, this example is according to the definition of uniform motion, because definition of uniform motion explains or suggests us that if a body covers equal distance, it means if a body covers इक्वल डिस्टेंस. देखिए इन सारे केसेस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. देख रहे हैं ना, इन सारे केसेस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब सभी के लिए टाइम भी बराबर होना चाहिए. दिखाई पड़ रहा है, ये भी 10 सेकेंड है 200 मीटर के लिए, इस 200 मीटर के लिए भी ये 10 सेकेंड है, इस वाले 200 मीटर के लिए भी ये 10 सेकेंड है, इस वाले 200 मीटर के लिए भी ये 10 सेकेंड है, और इस 200 मीटर के लिए भी कितना है, 10 सेकेंड. इट मीन्स इन दिस केस द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना. अभी हम इसको प्रूव करते हैं. नाउ वी आर प्रूविंग दैट द स्पीड विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. हाउ इज इट सो? सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली.
Suppose that first of all for the distance AB, only for the distance AB, the distance traveled is actually 200 meter and the time taken is 10 seconds. So the speed, the formula for the speed is speed equals to distance upon time. Speed equals to distance upon time. Okay, speed equals to distance upon time. Now that is equal to 200 upon 10. So it is 0 is cancelled out by 0, and the speed is in this case 20 meter per second. The speed in this case when the body is traveling from point A to point B, in this case the speed is actually 20 meter per second. Now for case BC, the distance traveled is 200 meter and the time taken is 10 seconds. Now the speed can be calculated by the formula speed equal distance upon time. So 200 upon 10, 0 cancel out हो गया, तो speed कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया. अगेन फिर से देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला भी लगा, तो 200 अपॉन 10, 0 कैंसिल आउट, कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड. इस केस में भी स्पीड कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है. तो आपने 3 केस कंसीडर किए और तीनों केस में देखा कि स्पीड कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. और जो लास्ट केस होगा इस केस में भी आप देखेंगे कि स्पीड कितना आ रहा होगा. देखिए यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर भी क्योंकि 200 मीटर है और टाइम यहाँ पर भी कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला यहाँ भी लगेगा 200 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड फॉर द डिस्टेंस D. इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस के लिए A B B C C D और D, हर एक डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या आ रही है सेम आ रही है 20 20 20 20. हर एक चीज़ के लिए स्पीड क्या आ रही है सेम आ रही है, ठीक है ना. अब जब स्पीड सेम आ रही है इट मीन्स वी कैन से दैट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, एंड नाउ आई एम drawing I will explain you the graph of, now I am going to explain you the graph of uniform motion. What is the graph for the uniform motion? The distance time graph for the uniform motion. Okay, so I think you have got my point. Now I am going to erase this all. Graph for uniform motion. Distance time graph for uniform motion. तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे लेंगे, ठीक है. अभी आपने देखा मैंने इंडिविजुअल डिस्टेंसेस की बात की, मैंने इसी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ, इन्हीं वैल्यूज़ को ले लेता हूँ, ठीक है. मैंने इंडिविजुअल डिस्टेंस की बात की. AB के लिए 200 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड है. CD के लिए BC के लिए कितना हो गया 200 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड है. CD के लिए 200 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड है, और DE के लिए भी 200 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ने, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के लिए एक टेबल बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम के लिए, ठीक है ना, जो कि क्लास 7 में आपको सिखाया भी जाएगा, ठीक है. ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस यहाँ पर किस में दिया गया है इन मीटर दिया गया है. अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूसरे टेबल में टाइम लेना है जो कि हो जाएगा इन सेकेंड, ठीक है ना, इन सेकेंड हो जाएगा, ठीक. अभी यहाँ पर देखिएगा देखिएगा, ठीक है. यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है. स्पीड वो भी किसमें इन मीटर पर सेकेंड. स्पीड के SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड के SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है. तो देखिएगा ध्यान से ज़रा, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस किसमें है इन मीटर है, टाइम किसमें इन सेकेंड है, और स्पीड किसमें इन मीटर पर सेकेंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया 200 मीटर, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, ठीक है. अब देखिए बॉडी कहाँ पर है, C पॉइंट पर है. बॉडी A से चली, A से स्टार्ट हुई बॉडी ने, यानी कोई कार है जो A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है,
कार ए पॉइंट से कहाँ पहुँची, बी पॉइंट पर। जब कार बी पॉइंट पर पहुँचेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 200 मीटर, ठीक है ना। टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लिख दिया मैंने। अभी कार बी पॉइंट से कहाँ पहुँच गई, सी पॉइंट पर पहुँच गई। तो अब बताइए कि ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा, पूरा बताइए। ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा, 200 + 200 तो कितना हुआ होगा, 400। और टाइम कितना लगा, 10 + 10 यानी कि 20 सेकेंड, ठीक है। ठीक, तो बॉडी अब कहाँ आ गई, सी पॉइंट पर, ठीक है। अब बॉडी सी पॉइंट पर आ गई। नाउ बॉडी अब सी पॉइंट पर आ गई है, ध्यान से देखिएगा। अभी बॉडी जो है सी से कहाँ जाएगी, डी पॉइंट पर जाएगी। और जब बॉडी डी पॉइंट पर जाएगी, ध्यान से देखिएगा, नाउ द बॉडी इज एट पॉइंट, नाउ द कार और द बॉडी इज एट पॉइंट डी। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू डी इज 200 + 200 + 200। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 600। और टाइम कितना लगा, 200 + 200 + 200 कितना हुआ डिस्टेंस, 600 मीटर। और टाइम कितना लगा, 10 + 10 + 10 तो कितना हो गया, 30 सेकेंड, ठीक है। सिमिलर वे में कार अभी डी पॉइंट पर है। अब कार डी पॉइंट से कहाँ पहुँच गई, ई पॉइंट पर पहुँच गई, ई पॉइंट पर पहुँच गई। और कार ने ए पॉइंट से लेकर टोटल कितना डिस्टेंस पूरा किया, ई पॉइंट तक। तो 200 + 200 + 200 + 200 कितना हुआ, 800 मीटर कवर किया, 800 मीटर कवर किया। एंड नाउ 800 मीटर के बाद 800 मीटर कवर किया। अभी और टाइम कितना लगा उसके लिए, ठीक है ना, कितना टाइम लगा वो देखिएगा। तो ए से लेकर ई तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस तो 800 मीटर ट्रैवल हुआ, 200 + 200 + 200 + 200 800 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। टाइम कितना लगा, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 40 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक रिदम बन गई है, एक रिदम बन गई, एक सीक्वेंस बन गया, एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ क्या बन गई, 200 मीटर पर 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड टाइम लग रहा था कवर करने में 200 मीटर को। 400 मीटर को कवर करने में 20 सेकेंड लग रहा है, 600 मीटर कवर करने में 30 सेकेंड लग रहा है, और 800 मीटर कवर करने में कितना लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 1000 मीटर को कवर करने में कितना सेकेंड लगेगा, 50 सेकेंड। कितना लगेगा, 50 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना, 50 सेकेंड लगेगा, ठीक। ये सीक्वेंस है। मान लीजिए इसको ना भी मानिए, इसको छोड़ दीजिए, इस वैल्यू को हटा दीजिए, तो आप 4 वैल्यूज़ के लिए निकालिए, ठीक है। स्पीड का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए सबका डिस्टेंस अपॉन टाइम करिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट के केस में, तो फर्स्ट के केस में क्या हो जाएगा, 200/10 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा केस देखिए, S1 हो गया। अब S2 निकालिए, 400/20, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 जाओ, फिर से कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इस केस में भी कितना आंसर आया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। इस केस में भी कितना आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस केस में डिवाइड कर लीजिए, 800/40 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में देखिए कितना आएगा, 1000/50, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 20। इस केस में भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए इन सारे केसेस में स्पीड क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इन ईच एंड एवरी केसेस द स्पीड इज कांस्टेंट। हर एक केस में स्पीड सेम आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा हर एक केस में। और जब स्पीड सेम आ रही होगी, इसका मतलब ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। दिस मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अभी हमको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। कौन सा ग्राफ बनाना है अपने को, डिस्टेंस
टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने को बनाना है, क्या है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हमारा जो है क्या रहता है, टाइम रहता है। ध्यान से देखिएगा, वाई और एक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। तो वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन मीटर होनी चाहिए, इन मीटर होनी चाहिए। और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और टाइम कितनी होना चाहिए, इन सेकेंड होना चाहिए। इन सेकेंड। तो वाई एक्सिस पर इस तरीके से ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस पर जो है वो हमारा टाइम बढ़ रहा है आगे। अभी हमको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे वो देखिएगा, क्या क्या डिस्टेंसेस लेंगे। डिस्टेंस हम जो कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पर, तो सबसे पहले हम लेंगे, कितना हमारा लिया है, 200, 200 के बाद 400, देन आफ्टर 600, देन आफ्टर 800 और देन आफ्टर 1000, ठीक है ना। ये हमने डिस्टेंस लिया और वो भी क्या है, मीटर में है। किस में है, मीटर में है, ठीक है ना। मीटर में जो है ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लेंगे हम, टाइम जो हमारा ये दिया गया है, ठीक है ना, ओरिजिन से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है ना। हमने इसको मेंशन किया, डिस्टेंस को देखिए, जीरो से कहाँ गए, 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। ये ग्राफ पर बनाएंगे और ग्राफ पे आपको पता होना चाहिए, वन लाइन का मतलब होता है वन यूनिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम कितना लेंगे, टाइम देखिए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी देखिए, जब टाइम 10 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 200 मीटर। तो देखिए यहाँ से टाइम 10 सेकेंड से एक लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से, परपेंडिकुलर बिल्कुल भी, जो कि 10 से ही ड्रॉ करेंगी, और इसको कहाँ से टच कर दीजिए, 200 वाली लाइन से टच कर दीजिए। तो एक पॉइंट हमको मिल जाएगा और ये पॉइंट होगा 10 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस आ रहा है, 200 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 20 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 400 मीटर, ठीक है ना। तो 400 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 20,400। अब 30 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 600 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 30 सेकेंड पर कितना कवर हो रहा है डिस्टेंस, 600 मीटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। 30 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 600 मीटर। 30 टाइम है, 30 सेकेंड टाइम है, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 600 मीटर। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से। अभी देखिएगा 40 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 40 सेकेंड पर 800 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। और 50 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 50 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 50 सेकेंड पर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। 50 सेकेंड पर डिस्टेंस कवर हो रहा है कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो अभी देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप चाहो तो लेबलिंग दे देना, इसको दे देना। टाइम हम कौन से एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो अभी हमको क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। पहले तो ओरिजिन से पहले पॉइंट को ज्वाइन करिए, ज्वाइन किया, फिर ये ज्वाइन किया, फिर ये ज्वाइन किया, फिर ये ज्वाइन किया, फिर ये ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। कैसी लाइन मिल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो इन सब पॉइंट से पास करके जाएगी। जो इन सब पॉइंट से स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम जो स्ट्रेट लाइन बीचों बीच में मिल रही है, इसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो किसके बारे में बताता है हमें, स्पीड के बारे में। एक्चुअली ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को, ठीक है ना। एंड इफ दिस लाइन, इफ द स्लोप
of distance time graph is a straight line, then the motion is said to be uniform motion. It means in case of a distance time graph, taking a distance time graph case में, if the slope is a straight line, in case of distance time graph the slope is a straight line, then it means the motion is uniform motion. Okay, so now it is completed for today, and in the next video I will start from the next topic, that is non-uniform motion. Till then, tata, bye bye, thank you.